بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مسز زاہدی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں وردی پر تمغے سے جائے جنرل کاؤسی پہنچ گیا۔ مسز زاہدی نے ہمارا تعارف کروایا۔ وہ ہم سب سے بڑے اتفاق سے ملا اور وردی میں ہونے کے باوجود پرجوش طریقے سے ہم سب سے معانقہ کیا۔ مسز زاہدی نے خصوصی طور پر اس کے لیے ایرانی کھانے پکائے تھے۔ کھانے کے بعد قہوے کے دور چلے۔ جنرل کاؤسی بڑے صوفے پر میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی دھیمی آواز میں میرے کان کے قریب اپنا منہ کرتے ہوئے کہا کہ رام سر میں مشن کو کامیابی سے سر انجام دینے پر، یعنی امریکی اڈا تباہ کرنے پر، میری طرف سے دلی مبارکباد قبول ہو۔ میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں کامیابی ہوئی، ورنہ ہم تو بغیر تیاری اور بغیر پلاننگ کے گئے تھے۔ ہم دونوں خاصی دیر تک رام سر میں سر کیے گئے مشن کے بارے میں دھیمی آواز میں گفتگو کرتے رہے۔ اس دوران میرے ساتھی بالکل خاموشی سے ہماری طرف دیکھتے رہے۔ ہم اتنی مدھم آواز میں بات کر رہے تھے کہ ساتھیوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ساتھی اب اکتا سے گئے تھے۔ میں نے جنرل کو کہا کہ محفل میں دو افراد کا دھیمی آواز میں گفتگو کرنا خلاف محفل ہے۔ جنرل نے فوراً ہی مجھے کہا کہ وہ شرمندہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اوپن آواز میں بات چیت شروع کر دی۔ جنرل نے کہا کہ میں آپ صاحب کا ایران میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کے ٹیم ورک کام کرنے پر آپ کی کامیابیوں کی اطلاع مجھے آپ کے ایران پہنچنے کے دوسرے روز ہی مل چکی تھی۔ کل آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی سردردی سے نجات دلائی ہے، جس کے لیے میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ سب اس کی گفتگو سے چڑھتے ہوئے سب دھیرے سے مسکرا کر رہ گئے۔ گروپ لیڈر کے ہوتے ہوئے دوسرے ممبران کم ہی بولتے ہیں، لہٰذا اب میں نے جنرل سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ میں نے کہا کہ جنرل صاحب، کل کے رام سر کے حادثے کو حکومت اور فوج نے کس حد تک اہمیت دی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اس حادثے کو ایک عام حادثہ سمجھ کر دبا دیا جائے گا، یا امریکی حکومت اس کو ایک تحریب کاری سمجھتے ہوئے سرکاری سطح پر اس کی تحقیقات کا کہے گی؟ اب جنرل کاؤسی کو بولنا پڑا۔ ابھی تو مقامی پولیس ہی حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حادثے کے وقت جو امریکی اڈے سے باہر گئے ہوئے تھے، آج ان کے بیان لیے جا رہے ہیں۔ امریکی سفیر کے احتجاج اور مشورے سے ہم نے رام سر کو سیل کر دیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ترکی سے بھی ایک امریکی ٹیم حادثے کی تحقیقات کے لیے پہنچنے والی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کاؤسی نے پھر منہ میرے قریب کرتے ہوئے کہا کہ اڈے کے اندر تمام لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو چکی ہیں۔ گارڈ روم کے اندر ایک گارڈ کی لاش بھی ملی ہے اور ایک امریکی کی لاش پارکنگ کے قریب اس کی جلی ہوئی گاڑی میں سے ٹکڑوں کی صورت میں برآمد ہوئی ہے، اور ایک ایرانی کی لاش اسی سڑک پر اڈے کے نزدیک سے ہی ملی ہے۔ ان تینوں کو پستول سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ میں جنرل کے اس انداز گفتگو سے حقیقتاً تنگ آ چکا تھا۔ میں نے اسے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس سے آخری سوال پوچھا، جنرل صاحب، کیا ہمیں اس حادثے میں ملوث سمجھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس رات ہم بھی تو رام سر میں ہی تھے۔ جنرل نے کہا، ہرگز نہیں، ہم نے اس حادثے کو دوسرا رنگ دے دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ نوری کا اڈے پر رہنے والوں سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چونکہ اڈے کے اندر آنے جانے کی اجازت تھی، اس لیے نوری نے اندر جا کر ہاتھا پائی کی اور اڈے والوں نے نوری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ نوری کی ہلاکت کے بعد اڈے پر رہنے والے امریکیوں کی دو پارٹیاں بن گئیں جو آپس میں لڑ پڑی۔ نتیجتاً کچھ لوگ تو آپس میں گولیوں کے تبادلے کی وجہ سے مارے گئے، جو باقی بچ گئے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکل کر گارڈ اور باہر سے آنے والے امریکی کو ختم کر دیا۔ کیونکہ اس طرح معاملہ رفع دفع نہیں ہو سکتا تھا اور اتنی ہلاکتوں کو چھپانا بھی ناممکن تھا، لہذا انہوں نے خود ہی اندر جا کر بم فٹ کر کے اڈے کو آگ لگا دی اور خود اپنی گاڑیوں میں شہر جا کر کافی دیر بعد واپس لوٹے۔ کیسی ہے یہ کہانی؟ جنرل نے داد طلب نظروں سے میری جانب دیکھا۔ بالکل بیکار اور فوری رد کر دینے والی، گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت تو ہم تھکے ہوئے ہیں، لہذا کل شام کو آنا، میں آپ کو کوئی فول پروف واقعہ بنا کر دے سکوں گا۔ جنرل نے کہا کہ میں کل شام 6 بجے آپ کو یہیں پر ملوں گا۔ یہ کہہ کر جنرل ہم سے رخصت ہوا اور ہم اپنے اپنے رومز میں چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا، جس فوج کے جنرل شاہ کی مدح سرائی اور خوشامد میں مصروف ہوں، ان کے ذہنوں میں ایسی ہی واہیات اور بچگانہ کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ اگلی صبح میں میجر ظفر سے ملنے سفارت خانے گیا۔ میں نے اسے رام سر والے واقعہ کی تفصیلات بتائیں۔ میجر ظفر خاموشی سے میری ساری کہانی سنی۔ ظفر کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ رام سر میں اتنے زیادہ امریکیوں کی ہلاکتوں کا سن کر وہ کچھ گھبرا گیا ہے، کیونکہ امریکی ان دنوں ایران پر ہولڈ کیے ہوئے تھے۔ اس کا خوف بھی بے جا نہ تھا، کیونکہ پاکستانی سفارت خانہ ایرانیوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں میں تھا۔ شہنشاہ ایران نے بھٹو کی وفات کے بعد
अमरीकियों के दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को रस्मी सा बना दिया था। अगर शहनशाह को रामसर में अमरीकी अड्डे की तबाही में पाकिस्तान का हाथ होने का पता चल जाता तो वो अमरीकियों के दबाव में आकर मजीद पाकिस्तान से दूर हो जाता। मेजर जफर ने बड़ी सोचो विचार के बाद कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि रामसर में इतनी ज़्यादा तादाद में हलाकतें हो जाएंगी, पर अब मैं समझता हूँ कि मुझे फर्स्ट मिलिट्री अटैची और सफ़ीर को एतमाद में लेकर सब कुछ उन्हें बता देना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला इतने बड़े हादसे को संभाल नहीं सकूंगा। मैंने कहा, यह तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर फर्स्ट मिलिट्री अटैची और सफ़ीर ने तुम्हें ही मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया तो फिर क्या होगा? हमने जो कुछ किया है वो पाकिस्तानी सफारत खाने की इयानत के बगैर किया है, क्योंकि हम लोग ना तो आपके बुलावे पर यहाँ आए हैं और ना ही आप लोगों ने हमें कोई मिशन सौंपा है। मुमलिकत पाकिस्तान के दुश्मन कौन हैं उन्हें हर बालिग़ुन नज़र पाकिस्तानी जानता है। यह सरासर हमारा ज़ाती फैसला और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ हमारी ज़ाती कार्रवाई है। तुम्हारे सीनियर्स ने अगर तुम्हारे साथ ताउन ना किया तो फिर यह मामला दो मुमलिकतों के दरमियान अंदरूनी मुदाखलत की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम खुद को इस मामले से बिल्कुल ला ताल्लुक रखो और अपनी आंखें और कान बंद रखो। इस मामले में अपना ज़रा सा भी ताल्लुक ज़ाहिर ना करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी और भलाई है। हम जब से अपने मिशन पर निकले हैं हमने कभी हुकूमत पाकिस्तान या अपने सफारत खानों से मदद नहीं ली। एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि हम हुकूमत पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुमलिकत पाकिस्तान के वफादार हैं। जब मैंने इस तरह जफ़र से खुली बात की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी गलत थी। अगर वो ये हमाकत कर बैठता तो उसका नतीजा बड़ा भयानक निकलता। जफ़र से मिलकर मैं वापस घर आ गया। गैरों के देश में जहां अपने भी सियासी मसलहत की बिना पर अपने पर जान निसार करने वालों की काविशों पर पानी फेर सकते हैं, हमारा अल्लाह और उसके रसूल और पंजतन पाक के अलावा कोई आसरा, कोई सहारा और मददगार ना था। शाम को जनरल काउसी ने भी आना था। मुझे जनरल पर भी पूरा एतमाद ना था। शाह की फौज की वर्दी पहनकर वो किसी वक्त भी शाह से अपनी वफादारी निभाने और इनाम के लालच में हमारा राज अफशा कर सकता था। मैंने साथियों को अपने रूम में बुलाकर सारी सूरत हाल बताई और कहा कि अगर हमने मजीद कुछ ईरान में करना है तो अपने रिस्क पर करना होगा। पाकिस्तानी सफारतखाने या किसी मुकामी की मदद की तवक्को रखना सरासर गलत है। हमने आज तक भारत समेत जिन ममालिक में भी मिशन पूरे किए हैं वो अल्लाह पाक की मदद और अपने जोरे बाजू पर किए हैं। बांग्लादेश, इंडिया और सऊदी अरब में हमें चंद खैर खाहों की मदद ज़रूर मिली है, लेकिन किसी भी मिशन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई शामिल नहीं हुआ है। लेकिन शायद यहाँ हमें ऐसे खैर ख्वाह भी ना मिल सके। इसलिए अब आपको यह फैसला करना है कि हम यहाँ से मिशन अधूरे छोड़कर वापस चले जाएं या अपनी मदद आपके तहत पूरे करें। कैसर ने कहा, भाईजान आप फर्दन फर्दन सबसे पूछ लें। मैं और सीमा तो आखिरी सांस तक आपके साथ मिशन में शरीक रहेंगे। सीमा का फैसला कैसर की जुबानी मेरे लिए नई बात थी। मैंने कैसर से इस बारे पूछा तो कैसर बोला, भाईजान सीमा यानी सपना को मुसलमान होने की मैंने ही तरगीब दी थी। यह मेरा मशवरा था जिसे उसने कबूल कर लिया। आप जानते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ। इसकी बड़ी वजह भी सीमा का मेरे साथ दहली जाना था। मेरे बच्चे मेरी वालदा के पास हैं। सीमा के इस्लाम कबूल करने के बाद हमने बाहमी रजामंदी से यह फैसला किया है कि किसी मुनासिब मौका पर हम निकाह कर लेंगे। हम दोनों की जहनी हम आहंगी की वजह से मैंने अपने फैसले में सीमा की रजामंदी भी शामिल कर ली है। सीमा और कैसर दोनों ने मुस्कुराते हुए आंखें झुका ली। क़ारीन को याद होगा कि मैंने बम्बई से सपना को कैसर के साथ दहली भेजा था और दहली में कैसर ने अपनी बीवी को काले करतूतों की वजह से तलाक दे दी थी और सपना के साथ बम्बई लौट आया था। आपको याद होगा कि सपना के रवैये से महसूस होता था कि वो मेरी जीवन साथी बनना चाहती थी। इस बात का उसने कई बार खुले लफ्जों में मुझसे इजहार भी किया था। मुझे इस बात से कतई इनकार नहीं कि अपनी घरेलू जिंदगी की तलहियों की वजह से यह बात 2 बार मेरे दिल में आई, मगर हवा के झोंके की तरह गुजर गई, क्योंकि मेरे ख्वाबों ख्यालों में बस वो चेहरा बसा हुआ था जिसे बर्मा में जादूगरनी ने पानी के तश्त में मुझे दिखाया था। सपना के साथ बम्बई लौटने पर जब मैंने कैसर से पूछा कि क्या वो सपना से शादी करना चाहता है तो कैसर ने कहा था कि एक तो सपना हिंदू है और दूसरी बात यह है कि मैंने इसे बहन कहा है। इस पर मैंने कैसर का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बहनें तो चचाजाद, खालाजाद, फुफीजाद और मामूजाद भी होती हैं। जब उनसे निकाह जायज़ है तो फिर मुंह से कह देने से कोई बहन नहीं बन जाती। इस पर कैसर ने कहा था कि वो देखेगा, अगर किसी दबाव के बगैर सपना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर वह उससे शादी का कहेगा। उसके बाद जब सपना ने इस्लाम कबूल करके
सपना से सीमा बन गई तो फिर दोनों ने किसी के इल्म में लाए बगैर शादी के अहदो पैमान कर लिए। कैसर ने सपना के मुतालिक काफ़ी मुद्दत पहले मुझे कहा था कि सपना अनाड़ी और जज्बाती है, इसलिए इसे किसी मिशन पर साथ ना रखा जाए। कैसर के दिल का चोर मैंने उसी वक्त पकड़ लिया था और अब उन दोनों ने खुले बंदू अपने फैसले का इजहार कर दिया था। मैंने उनको उनके फैसले की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुम दोनों परले दर्जे के अहमक हो जो अभी तक निकाह नहीं किया। भला इससे बेहतर और कौन सा मौका होगा। मैं आज ही तुम्हारे निकाह का इंतजाम करता हूँ। मेरे साथियों ने फर्दन फर्दन मिशनू में साथ देने का वादा किया। मीटिंग खत्म हुई तो हम मिसिस जाहदी से मिलने ड्राइंग रूम में चले गए। मैंने मिसिस जाहदी से कहा कि आज कैसर और सीमा को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करना है, लिहाजा वो माहा और सीमा को बाजार ले जाए और शादी के लिए पाकिस्तानी तर्ज के मलबूसात और जेवरात खरीद लाए और निकाह खां का भी बंदोबस्त कर दे। मिसिस जाहदी, जिसकी कोई औलाद ना थी, वो सीमा को अपनी बेटी बनाकर विदा करने के लिए दोनों लेडीज को साथ लेकर शॉपिंग करने निकल गई। इधर इमरान और मुजम्मल ने कैसर को साथ लिया और दुल्हा बनाने के लिए मलबूसात खरीदने बाजार चले गए। जब शादी के तमाम अखराजात मैंने बर्दाश्त करने का कहा तो मुजम्मल और इमरान भी मचल गए कि वो अखराजात में शिरकत करेंगे, लेकिन मैंने उनको ये कहकर रोक दिया कि मेरा कोई सगा भाई या बहन नहीं है। कैसर मुझे सगे भाइयों से भी बढ़कर अजीज है, लिहाजा ये खुशी मुझे पूरी करने दे। मैंने माहा को $10,000 देते हुए कहा कि इससे सीमा के लिए दुल्हन ड्रेस और जेवरात खरीद लाए। मैं अपने कमरे में गया तो मेरे सारे साथी मुझे बताए बगैर ही गायब हो गए। जब वापस लौटे तो सब ने सीमा के लिए जेवरात के डब्बे उठाए हुए थे। मिसिस जाहदी माहा और सीमा को लेकर बाद दोपहर वापस लौटी। उसने अर्जेंट सीमा के लिए शादी वाला जोड़ा सिलवाया था और जूते, लेडीज बैग के साथ ढेर सारे जेवरात भी खरीदे थे। आज तो $10,000 कोई वक़्त ही नहीं रखते, लेकिन उस दौर में सोना 160 रुपये फी तोला था और ईरान में तो उससे भी सस्ता था। शादी का सारा इंतजाम मुकम्मल हो गया। निकाह खां भी आ गया था। तकरीबन उसी टाइम जनरल कौसी भी वर्दी पहने आ पहुंचा। जब उसे शादी का इल्म हुआ तो उसने 2 रोज़ बाद कॉन्टिनेंटल होटल में वलीमे की जिम्मेदारी बाइसरार खुद ले ली। शाम 5:30 बजे कैसर और सीमा का निकाह पढ़ा दिया गया और वो दोनों रिश्ता अज़दवाजियत में मुंसलिक हो गए। मिसिस जाहदी ने भी एक जेवरात का सेट सीमा को दिया। गर्ज के परदेश में हमने दिल खोल कर शादी की रस्मात को निभाया। मेरी पूरी जिंदगी में ये पहली खुशी थी जिसे मैंने दिल खोल कर इंजॉय किया। मिसिस जाहदी ने टेप रिकॉर्डर पर गाने लगाए और हमसाए से आई हुई खवातीन मिसिस जाहदी और माहा ने नाचना शुरू कर दिया। मिसिस जाहदी ने रात के लिए अनवा इकसाम के खाने पकाए। खाना खाकर रात 11 बजे हमारी ये शादी की रस्म खत्म हुई। माहा दुल्हन को कैसर के कमरे में ले गई थी। कुछ देर बाद हमने दुल्हे से 11 बैठकें निकलवा कर उसे कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। जब जनरल कौसी ने देखा कि महफिल ख़त्म हो गई है तो उसने मुझे कहा कि कल आपने रामसर वाले वाक़या की फुल प्रूफ कहानी बनाने का कहा था। मैंने जनरल से कहा कि इस खुशी के मौका पर खून खराबे वाली दास्तान छेड़ना मुझे मुनासिब नहीं लगता। अगर कल शाम आप तशरीफ़ ले आएँ तो तफसील से आपको बता सकूँगा। जनरल खुद भी शायद यही चाहता था। उसने अगले रोज़ शाम 5 बजे आने का वादा किया और रुखसत हो गया। मेरे साथी भी इस हल्ले गुल्ले से थक चुके थे, चनाचे वो भी अपने कमरों में चले गए। तो मैंने मिसिस जाहदी का इस ताअवुन और इंतज़ाम का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में चला गया। सीमा और कैसर की शादी होने से मेरे सर से एक बोझ उतर गया था। सीमा हमारे साथ साथ हर मुल्क, हर शहर में जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं। हम सब अपनी जानें हथेली पर रख कर मिशन सर अंजाम दे रहे थे। जहां भी जाते बस यही समझते कि शायद ये ज़िंदगी का आखिरी मिशन हो और शहादत मिल जाए। और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो जाता तो सीमा का क्या होता। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अब कैसर को हर मिशन में पीछे रखा करूंगा, क्योंकि अब ये एक नहीं 2 जिंदगियों का सवाल था जिन्होंने एक होने पर जिंदगी की रंगीनियों से लुत्फानंदोज होना था। मेरा क्या था, एक सूखे पत्ते की तरह हवा के दोष पर कभी इधर कभी उधर उड़ता फिर रहा था। कैसर और सीमा की शादी का अगला दिन भी शोर शराबे में गुजर गया। हम सब के मुसलसल मिशन में मसरूफियत की वजह से जो हम सब पर टेंशन थी, हम सब ने उसे अपने जहनों से झटक कर खुशी से ये 2 दिन गुजारे। शाम 6 बजे जनरल कौसी सिविल ड्रेस में मिलने आ गया। हम सब मिसिस जाहदी के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अब से फर्दन फर्दन मिलने के बाद जब उसने नई नवेली दुल्हन सीमा से हाल शुमा खूबस्त पूछा तो हम सब हंस पड़े और सीमा शर्म से दोहरी हो गई। जब से हम ईरान आए थे फारसी जुबान के आम कलिमात हम सब ने सीख लिए थे। सीमा ने गर्दन झुकाए बड़ी आहिस्ता आवाज में कहा, चितौरी।
हम सब ने सुन लिया और फिर एक फरमाइशी कहकहे से सारा हाल गूंज उठा। सीमा के चेहरे से रात भर जागने और कैसर की हरमस्तियों के असरात साफ दिखाई दे रहे थे। इस पर चितौरी जवाब सुनकर हम सब ने फरमाइशी कहकहा लगाया था। इतनी देर में चाय का दौर शुरू हो गया। जनरल काउसी ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा कि राम सर के वाकया की फुल प्रूफ स्टोरी कब सुनाओगे। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैं भी संभल कर बैठ गया। जनरल काउसी मेरे साथ सोफे पर बैठा हुआ था। मैंने जनरल काउसी से कहा कि जनरल साहब, मेरे चंद सवालों के जवाब दे दें तो स्टोरी खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगी। मेरा पहला सवाल, कैस्पियन सी में ईरान के अलावा किन दूसरे ममालिक के साहिल हैं? रशिया, जनरल ने जवाब दिया। किस मुल्क की ख्वाहिश होगी कि ये अड्डा जिस पर लगे आलात उसके मुल्क के अंदर तक झांक सकते हैं ख़त्म कर दिया जाए? रशिया। जनरल अभी भी मेरी पूरी बात समझ नहीं पाया था। जनरल काउसी, एक छोटी सी रूसी आबदूज रात के अंधेरे में पानी से बाहर आई। उसमें से 6 गोताखोर बाहर निकले और खामोशी से अड्डे में दाखिल हुए और बम्बू और दस्ती असलहा से अड्डे पर मौजूद सब अफराद को हलाक कर दिया। जब वो अपनी कार्रवाई में मसरूफ थे, उनमें से एक गोताखोर जो पार्किंग में से बाहर आने वालों पर निगाह रखे हुए था, उसे एक गाड़ी अड्डे में दाखिल होती हुई दिखाई दी। उसने उस गाड़ी वाले अमरीकी और गार्ड को हलाक किया। अपनी कार्रवाई से फारिग होकर उन गोताखोरों ने अड्डे और बाहर से आने वाली गाड़ी को बम्बू से तबाह किया और तमाम आलात नाकारा कर दिए और फारिग होकर वापस अपनी आबदोज में चले गए। कहाँ चले गए? जनरल, जो मेरी बात बड़े गौर से सुन रहा था, बोला, रशिया। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जहाँ तक नूरी के कत्ल होने की बात है, उसे आप अमरीकी अड्डे से ना मिलाएं। नूरी के मकामी ईरानी दुश्मन भी हो सकते हैं जिन्होंने मौका पाकर नूरी को कत्ल कर दिया। आपको एक ही दिन में हुए कत्लों की कड़ियां मिलाने की जरूरत नहीं है। काउसी ने एक लंबा सांस लिया, जैसे उसके सर से कोई बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। काउसी बोला, वाकई इससे बेहतर कोई तफ्तीश हो ही नहीं सकती। दरअसल राम सर का वाकया इतना बड़ा था कि हम राम सर के गिर्द ही घूमते रहे। कैस्पियन सी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। आप अब ये मेहरबानी कीजिएगा कि इस बारे में बिल्कुल खामोश रहें। मैं तफ्तीश का ये नया रुख अपने नाम से वजारत खारजा और अगर मुमकिन हुआ तो शाह तक पहुंचाऊंगा। मुझे यकीन है कि इस पुरअसरार वाक़या को हल करने में मुझे कम अज़ कम एक मेडल तो ज़रूर मिलेगा। थोड़ी देर मजीद बैठने और अगली रात वलीमे की याद दहानी करवाकर काउसी हमसे रुखसत हो गया। शादी के दूसरे रोज़ भी ख़वातीन नाचती गाती रहीं। आज भी मिसिज जाहदी और उसकी सहेलियों ने खूब ढोल धमाका किया, जो रात गए तक जारी रहा। मिसिज जाहदी ने अपनी साथी ख़वातीन के लिए शराब मंगवाई थी। ईरान में दौरे शहनशाहियत में मर्द तो मर्द, औरतों का पीना भी मायूब नहीं समझा जाता था। शराब के नशे में ये ख़वातीन नाच गाने और तफरीह की सारी हदूद को पार कर गईं। चूँकि ये लेडीज़ की महफिल थी, लिहाजा हम सब मर्द अपने अपने रूम्स में चले गए।